رہے ہیں چینل JNN۔ ٹائیگر فورس شرکائی مہم میں حصہ لے گی، وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی پیغام۔ 9 اگست کو ٹائیگر فورس کا دن منایا جائے گا، ہر شخص کو شرکائی مہم میں حصہ لینا چاہیے۔ لاہور پاکستان کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ کر ان کا قیام 2 روز ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں مونسون کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ صرف نالوں کی صفائی مسئلے کا حل نہیں، لوکل باڈیز کے پاس ایک باقاعدہ میکانزم ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ ایک محکمے کے 2 وزیر ہونے کے باوجود کراچی کا یہ حال ہے۔ ورلڈ بینک کی طرف سے 1.25 ارب روپے کی گرانٹ کہاں گئی؟ سندھ میں 17 سال اقتدار کے باوجود پیپلز پارٹی کچھ نہ کر سکی۔ شہر کارڈ میں موسلا دھار بارش کے بعد اہم شاہراہوں پر پانی تاحال موجود ہے۔ سندھ حکومت اور بلدیاتی اداروں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز نے بلوچستان وندر میں کارروائی کر کے 5 مسافر خواتین سے کروڑ روپے مالیت کی منشیات برآمد کروا لیں۔ اسلام آباد پولیس کا دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر ضلع بھر میں غیر قانونی مویشی منڈیوں پر کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ گولرا، سیکٹریٹ اور سبزی پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر غیر قانونی بکرا منڈی لگانے والے درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 20 کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا۔ اظہر علی، بابر اعظم، عابد علی، اسد شفیق، فہیم اشرف، فواد عالم، امام الحق، عمران خان سینئر، کاشف بھٹی، محمد عباس اور دیگر شامل۔ انگلینڈ میں موجود دیگر 9 کھلاڑی T20 سیریز کے لیے اپنی تیاریوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اولمپئن اسد ملک ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے۔ اسد ملک ٹوکیو اولمپکس، میکسیکو اولمپکس اور میونخ اولمپکس 1972 میں جیتنے والی پاکستانی ٹیموں کا حصہ تھے۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم برائے خیبر پختونخوا، برائے پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इन्वेस्टिगेटिव और सही जर्नलिज्म करें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे. मैं चैनल JNN को मुबारकबाद देता हूँ उसके इजरा पे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबी दे और आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और कौम के मेयार पे पूरे उतरें. आप देख रहे हैं चैनल JNN ला रहा है आपके लिए एंटरटेनमेंट, आपके लिए फुली एंजॉय. वो प्रोग्राम जो देखना चाहते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, मेरी बेस्ट विशेस चैनल के साथ है. जीते रहो, फॉलो फूलो और लोगों को खुश करते रहो. बेस्ट ऑफ लक. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कम JNN चैनल चे न्यू लॉन्च कई نو دا یہ پاکستانی صحافت کی وقت اضافہ ده او امید ده چې دا به د قوم ترجمان جوړیږي. زمونږ تمام همدردیان یعنی خواهشات د JNN سری الله دې همیشه سلامت لري، الله دې کامیابی دې نصیب کړي. ډېر زیاته من JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं. पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है. हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है. एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं. 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com. JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए. पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है. हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है. एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं. 051-831-6354, 0300-7888595. वेबसाइट www.jnnnewstv.com. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा.
JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और आपको बहुत ज़्यादा गुड लक, लेकिन एक साथ ज़रूर कहूँगी कि अच्छी जर्नलिज़म, अच्छी रिपोर्टिंग और मॉरल वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए रिपोर्टिंग का बहुत फुकदान नज़र आता है। तो आपसे उम्मीद है कि आपका चैनल इन सारे मामलात को, जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच की आवाज़ बनकर, हक पर मबनी ख़बरें चलाकर कौम को सही ख़बरों से आगाह करने के लिए JNN अपना किरदार अदा करती रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची ख़बर जो है वही आगे पास ऑन करें आप, और इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके चैनल को और आपके तमाम व्यूअर्स को भी जो है ना मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाखिर और मैं JNN जो कि एक नया अपकमिंग पाकिस्तानी चैनल है उसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है कि पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज उजागर करेंगे और दुनिया भर में कोई पाकिस्तान की बुरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो JNN, यू रॉक, ऑल द बेस्ट। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वर्दा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट विशेज़ है मेरी इनके साथ। अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा कामयाब करे, तरक्की दे चैनल को, और देखना मत भूलिएगा आप JNN। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। जैसा ही मैं तुहाडा अपना नवाज अंजुम ते जनूबी पंजाब वालों एक नवा चैनल लॉन्च थींदा पे JNN
देखना ना भुलाए को फटाफट सब्सक्राइब करो तले उंगली का निशान उसे को पुश करे सो ते सब्सक्राइब थी वैसी से अपने धरती का चैनल होवे ते हाथ ठंडा थी वे दे मंठार चैनल वे सोने सुरीले तक सॉन्ग मिलसन सोने सोने खबर तक सुनने को मिलसन बस याद रखाए JNN चैनल। देखिए किसी मुल्क की तरक्की में जर्नलिज़म का बहुत बड़ा एक रोल होता है और इसके लिए अगर अच्छे से अच्छी मटेरियल मिलता रहे आपके वीडियो प्रिंट मीडिया आपके जो टीवी एंड ऑल दीज थिंग्स हैं इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो एक अच्छा अगर एडिशन हो रही है मुझे लगता है कि जी आपकी कंपोजिशन आपके जो टीम है उसमें काफ़ी जान है कि इसको लड़ सके। तो इट्स ए कम्पेटिटिव फील्ड बट इट्स अ पेएबल है कि उसके अगर आप अपना नाम बना लेते हैं तो उसमें आपकी रिटर्न भी आती है आपकी एक प्रेस्टीज भी बनती है और ये चीज़ें बनती हैं। तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो न्यू चैनल JNN लॉन्च हो रहा है मैं खुसूसी तौर पे उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात है जितने भी चैनल ज़्यादा हो रहे हैं इतनी एक्सेस ज़्यादा हो रही है और लोगों को सहूलत पहुँच रही है। तो मैं खुसूसी तौर पे पूरी टीम को और उसके जो ओनर्स है उस पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और आज खुशी का दिन है कि इस तरह चैनल्स एक और चैनल का इजाफा हुआ है। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। जमशेद साहब साथ के उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए ये पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक एनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। एक बहुत अच्छा इजाफ़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में जो मीडिया की इंडस्ट्री है इसमें एक अच्छा रोल अदा करेंगे और हम आपको खुशामदीद करते हैं। I congratulate to JNN channel that they are going to be positive people, they are going to give positive news, at the same time they'll create a harmony between everyone, west, east, all the best should be there. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, गुड लक टू JNN और हमारी पूरी दिली ख्वाहिशात ये हैं कि आपको कामयाबी मिले और बड़ी ज़रूरत है मीडिया, एक सच्चा और खरा मीडिया चैनल की ज़रूरत है और होपफुली ये प्रूफ करेंगे कि बिल्कुल सही खबर आवाम तक पहुंचाई जाएगी। थैंक यू।
बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि टाइगर मुहिम में हिस्सा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ख़ुसूसी पैगाम, 9 अगस्त को टाइगर फोर्स का दिन मनाया जाएगा, हर शख्स को शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में मजीद कहा कि हमें मुस्तकबिल के लिए अभी से काम करना होगा। 9 अगस्त को टाइगर फोर्स की क़यादत खुद करूंगा, मेरे साथ अरकान कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर लोग भी शामिल होंगे। मैं अपने सारे जो टाइगर फोर्स है उसको आज एक ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ। 9 अगस्त को हम सारे पाकिस्तान में एक टाइगर फोर्स दिन बना रहे हैं, लेकिन ये इस दिन का मकसद क्या होगा? सारे पाकिस्तान में हम शजरकारी करेंगे और इसको लीड करेगी हमारी टाइगर फोर्स। लेकिन इनके साथ साथ मैं सारे अपने MNAs को, अपने मिनिस्टर्स को, अपने MPs को, सबको कहता हूँ कि आपने पूरी तरह 9 अगस्त को शिरकत करनी है सारे पाकिस्तान में शजरकारी की। आपको पता है कि हमने 10 अरब दरख्त लगाने हैं इंशाल्लाह 2023 तक। हमारे 10 लाख रजिस्टर्ड रज़ाकार हैं जिनको हम टाइगर्स कहते हैं। इन सबको आप सबको मैं ये कह रहा हूँ कि 9 अगस्त को आपने ये लीड करनी है, आपने क़यादत करनी है शजरकारी की। इसमें नौजवान, हमारी स्कूल के स्टूडेंट्स, सब ने शिरकत करनी है, क्योंकि हम सबको समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान में दरख्त लगाना 2 वजह से ज़रूरी है। एक कि जो हमारे शहरों के अंदर आलूदगी, पोल्यूशन बढ़ रही है और इसकी वजह से लोगों की सेहत पे असर पड़ रहा है और आगे जाके मज़ीद और पड़ता जाएगा अगर हम अभी से इसका कुछ ना करें। दूसरी वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क है, जिस तरह मैं बार बार बता चुका हूँ, ग्लोबल वार्मिंग, जो क्लाइमेट चेंज है, उसमें जो मुल्क मौसम गर्म होने से सबसे 10 उन मुल्कों में से जो सबसे ज़्यादा मुतासर है उसमें पाकिस्तान एक है। इसलिए हमने अपने आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क में शजरकारी करनी है। तो इंशाल्लाह 9 अगस्त को मैं भी शामिल होऊंगा इसमें, सारी टाइगर फोर्स हमारी शामिल होगी और मज़ीद जो भी टाइगर फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप रजिस्टर हों ताकि हम आपको बताएं कि मुल्क के किस हिस्से में आपको कौन लीड करेगा, किधर से आपको पौधे मिलेंगे, ताकि आप पूरी तरह इस मुहिम में शामिल हों। तो इंशाअल्लाह हमने जो टारगेट बनाया हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख का एक दिन में रिकॉर्ड कायम करेंगे कि एक दिन में सबसे ज़्यादा दरख्त इस मुल्क की तारीख में लगाए जाएंगे इंशाअल्लाह 9 अगस्त को। शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएंगे लाहौर पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने ईद उल अजहा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात में किया गया। सियासी कायदीन का कहना था कि मुल्क पर नाजायज और नाअहल हुकूमत मुसल्लत है। मुलाकात में ईद उल अजहा के बाद APC बुलाने, महंगाई और बेरोजगारी समेत दीगर अहम मामलात पर बातचीत की गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मियां शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जिसमें शरीक तमाम जमातें मुकम्मल प्रोग्राम पेश करेंगी। उनका कहना था कि हुकूमत से जान छुड़ाना अव्वलीन जरूरत है। 2 सालों में महंगाई आसमान से बातें कर रही है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल है। उन्होंने कहा कि सरकारी आटे खाने के काबिल नहीं, लोग महंगा आटा लेने पर मजबूर हैं। गंदम की किल्लत हर तरफ नजर आ रही है, जबकि चीनी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत हर हवाले से नाकाम हो चुकी, हुकूमत के पास आम आदमी को रिलीफ नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। उनका क़याम 2 रोज़ा होगा। वो अपने दौरे के दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी APC के एजेंडे पर लीगी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे, जिसमें हुकूमत हटाओ मिशन और APC के एजेंडे पर मुशावरत होगी। लाहौर पहुंचते ही बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, अहम सियासी अमूर और सियासी इत्तेहाद के हवाले से गुफ्तगू।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। स्पीकर साहब की इजाजत से कुछ बिल ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं, तकरीबन 11 के करीब ऐसे हैं जो कानून साजी जहां दरकार है, लेकिन ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अली मलिक साहब तशरीफ रखें, आप सीनियर ऑनरेबल मेंबर हैं। नेशनल इंटरेस्ट प्लीज। फॉरेन मिनिस्टर जो है बड़ी सर, उसमें हमारी ये कोशिश बात कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम इन पे लेजिस्लेशन करें और हम करना चाहते हैं। हमने दस्ते तावन भी बढ़ाया, हम इनसे इमदाद के तलबगार भी हैं, हुकूमत के लिए नहीं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के मफादात मुकद्दम हैं, पाकिस्तान के मफादात मुकद्दम हैं। हमारा रोल दोइम है, आज हैं कल नहीं होंगे। हमसे बड़ी बड़ी हस्तियां यहां आई और चली गईं। जनाब वाला, हमने इस चीज को सामने रखते हुए और वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए जो टाइम बार्ड हमारे जो कवानीन हैं, हमने ऑपोजिशन से भी उनसी खिदमत गुजारिश की कि आइए मिल बैठकर हम उनको आइडेंटिफाई कर लें और उन पर हम लेजिस्लेट कर लें, क्योंकि हमारे पास एक वक्त की कदगन है। हवाले से और साथ साथ जो फैटिफ का और दहशतगर्दी का और बहुत से इश्यूज़ को जो लेजिस्लेशन हो रहा है, उस पे जो हुकूमत का रवैया है कि वो फैटिफ का नाम लेके अपने आप को आमराना ताकतें देना चाहते हैं, उस पे हम पार्लियामान में जो हमारा स्ट्रैटेजी होगा, ओवरऑल जो हमारा हुकूमत का अपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा, उस पे हमने किसी से बात किया है और इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू कर देंगे। ये बताइएगा कि जो कराची में जो हालात नजर आए हैं, आपने एक वजीर ने सईद गनी ने ट्वीट भी किया कि समा ने गलत रिपोर्टिंग भी की, जो कराची के सूरत के हाल है उस पर क्या कहेंगे और क्या अपोलोजाइज करेंगे? आपने उसे रिट्वीट किया था। सॉरी, कराची के ऊपर एक फुटेज जो चल रही है, आप सईद गनी ने एक फुटेज रीट्वीट की थी और आपने भी रीट्वीट की थी, तो उसके ऊपर क्या सईद गनी का नोटिस लेंगे और आप अपोलोजाइज करेंगे कि गलत आप किस चीज़ की मैं अपोलोजाइज करूं? जिसके ऊपर आप लोगों ने आपने रीट्वीट किया है, आपने वो फुटेज देखी होगी कि आपने गलत रीट्वीट किया है, गलत फुटेज। नहीं, मैंने कोई गलत रीट्वीट नहीं किया हो। ये बताएं कि अब एक मुतहदा अपोजिशन की तरफ आप एबीसी की तरफ जा रहे हैं, इस वक्त जो मौजूदा हालात है, आपको कितना तवक्को कर रहे हैं? अगर जहां मिलने के लिए जा रहे हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, किस हद तक तवक्को है कि आइंदा आने वाले माह में या अगले 1-2 माह में आप कोई कंक्रीट किस्म की कोई इस किस्म का एटमॉस्फेयर बना सकेंगे जो इन हाउस तब्दीली या फिर जो मियां साहब की डिमांड है फ्रेश इलेक्शन उस तरफ जाया जा सके, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक्स ही होंगे गवर्नमेंट के ऊपर? जहाँ तक ये मिड टर्म इलेक्शन की बात हो या इन हाउस तब्दीली की बात हो या जो भी अपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा, वो तो सारे अपोजिशन मिलके फैसले लेंगे और जो भी मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला होगा, चाहे वो रहबर कमेटी में हो, APC में हो, उसके मुताबिक हम ज़रूर चलेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सब एक पेज पे है, सारे सूबे के अवाम एक पेज पे है। वैसे इमरान को जाना पड़ेगा और जिस तरीके से इमरान की सिलेक्टेड हुकूमत ने आम आदमी का मुआशी सूरत हाल को मुश्किल में डाल दिए हैं, हर पाकिस्तानी का अब ज़िंदगी और सेहत को भी ख़तरा है और उनका मुआशी सूरत हाल को भी ख़तरा है। पाकिस्तान के अवाम एक पेज पे हैं, तो अपोजिशन को जल्द से जल्द पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरते हुए उनका मिसाइल के हल निकालना पड़ेंगे। उस मार्च में एक साथ आपके साथ मैंडेट दिया कि आप मार्च करें और सब लोग आपके साथ चलेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी हद तक और नून लीग भी जलसों की हद तक आपके साथ जरूर शामिल हुई। एट दी एंड आपको इस्लामाबाद अकेले खड़े होना पड़ा। क्या वो आपके अकेले का फैसला था या पूरी अपोजिशन का फैसला था? अब की बार भी कहीं आपके साथ? देखिए, मैंने उस तो भी वजाहत की थी कि अगर किसी एक पार्टी की तैयारी का लेवल और हो और दूसरी पार्टी की तैयारी का लेवल दूसरा हो तो उसको हम मैनेज करेंगे
اور اس میں ہم ایک دوسرے کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ میرے لیول پر آ کر کیوں شریک نہیں ہوئے. اور اس وقت بھی آپ نے میری باتیں سنی ہوں گی اور میں بات کرتا رہا ہوں. لیکن یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کے جو اثرات پڑے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کا سوال بنتا ہے. اور اسی کی تلافی کے لیے ہم سب دوبارہ بیٹھ کر سوچ رہے ہیں. عید کے بعد انشاءاللہ کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی. پہلے رہبر کمیٹی بیٹھے گی, وہ کچھ تجاویز مرتب کرے گی ایجنڈے کے طور پر, اور پھر APC جو ہے اس کو آپ پہلے بھی یہاں آئے لاہور بیٹھے رہے, اپنی میٹنگ کی تھی, خبریں تھی کہ شہباز شریف سے ملنا چاہ رہے, ملاقات نہیں ہوئی. کل مولانا صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ گئے, شہباز شریف باہر بھی ہے, انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کیا, اور آج خبر ہے کہ آپ یہاں سے وہاں جائیں گے ملاقات کرنے. کیا چاہتے تھے شہباز شریف, کیا ان کے خدشات تھے کہ وہ آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ مولانا صاحب کی ملاقات کے بعد وہ مان گئے آپ سے ملنے کے لیے. ایسے تو بالکل بات نہیں کری. آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک تو گلوبل پینڈیمک چل رہا ہے. جہاں تک کووڈ اور کرونا کی بات ہے, ہمیں اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. اور جہاں بھی پوری دنیا میں جب ایک اہم شخصیت کو یہ بیماری لگی ہے تو میڈیا نے اور باقی سیاسی جماعتوں نے ان کے ساتھ ہمدردی دکھائی. اور جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بات ہے, شہباز شریف صاحب کی صحت کی بات ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چاہے یہاں کا میڈیا ہو یا کچھ سیاسی جماعتیں, وہ شہباز شریف صاحب کی صحت پہ سیاست کر رہے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں قابل مذمت ہے. اب شہباز شریف صاحب کووڈ سے ایک بہت مشکل بیماری سے, جبکہ وہ کینسر پیشنٹ بھی ہے, وہ گزرا ہے اس بیماری سے, اور اب ماشاءاللہ الحمدللہ صحت یاب بھی ہو رہا ہے. مولانا صاحب سے بھی ملا ہے, آج میرا ملاقات ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اور ملاقاتیں کریں گے, اور اپوزیشن کا جتنا بھی ملاقاتیں ہوتے ہیں وہ کم ہوں گے. ہمیں مل کے موقف لے کے چیف آف آرمی صاحب سے کیا یہ پارٹی کا منشور ہے یا ان کا اپنا کیا اس کا کیا تھا مقصد؟ میں ایکسپلینیشن مانگوں گا رحمان ملک صاحب سے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ انٹیریئر کمیٹی کے جو چیئرمین ہے اس لحاظ سے شاید ملا ہوگا, لیکن میں تو ضرور پوچھوں گا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ سے بھی اور مولانا صاحب سے بھی سوال ہے کہ آپ کا ایک بات پہ اتفاق ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے. اسی قسم کی موومنٹ 99 میں چلی تھی, جب پائی بنی تھی, عوامی اتحاد بنا تھا, تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں صرف یہ ہمارا مقصد ہے کہ یہ حکومت جائے, لیکن اس سے اگلا پلان نہیں دیا گیا. کیا اب آپ کے پاس اس کے بعد کا پلان ہے کہ اگر عمران جائے تو اس کے بعد متبادل آپ قوم کو کیا دیں؟ میں اس پہ ذرا عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے, ہم مسلسل 2 سالوں سے ایک بات بڑی وضاحت سے کر رہے ہیں کہ قوم کا, عام آدمی کا ووٹ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. پہلے عوام کو وہ امانت واپس کی جائے, ایک حقیقی مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی قوم کا نمائندہ ہوگا وہ آ کر حکومت کرے. اس طریقے سے یہ مینڈیٹ جو ہے یہ چونکہ غلط ہے, تو ایجنڈا جو ہے وہ تو اسی وقت ہمارا تمام پارٹیوں کا اسلام آباد میں طے ہو گیا تھا, اور آج بھی ہم اس پر قائم ہیں. لیکن جیسے رات کو بھی آپ حضرات سے بات ہوئی کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ان 2 سالوں میں بجٹ کہاں پہنچایا, ملک کی معیشت کہاں پہنچائی, آج غریب کی حالت کیا ہے, آج مزدور کی حالت کیا ہے, آج نوجوان بےروزگار کیوں ہے, تاجر طبقہ کیوں چیخ رہا ہے, پکار رہا ہے. تو ملک کی معیشت کو اس حد تک انحطاط کا شکار کرنا, یہ تو ریاست پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی بقا کیا کر رہے ہیں ہم نے. لہٰذا حکومت جائز حکومت بنے تاکہ وہ جو بھی کرے وہ حقیقی معنوں میں قوم کی نمائندگی نظر آئے, اور پھر ظاہر ہے کہ ہماری جو پرائرٹیز ہوں گی وہ ملک کی معیشت کو اٹھانا ہوگا. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ لوگ اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ حکومت کو جانا چاہیے, حکومت گرا دینی چاہیے, جبکہ یہ منتخب حکومت ہے. ڈکٹیٹر کا یہی کام ہوتا تھا کہ منتخب حکومت کو گراتا تھا, اقتدار پر آ کر بیٹھتے تھا. آپ میں اور متحدہ پولیسیں کو ڈکٹیٹر میں کیا فرق رہ جائے گا اگر حکومت گراتے ہیں؟ ہم اس حکومت کو جائز ہی نہیں سمجھتے. ہم نے جیسے حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی, ہم نے پہلے دن سے ہی بیعت نہیں کی, اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. تو اس حکومت کو جانا ہوگا, اس لیے کہ ناجائز بھی ہے اور نااہل اور نالائق بھی ہے. تو اس اعتبار سے ہمارا موقف بالکل مختلف ہے عام حالات کے مقابلے میں. مولانا صاحب یہ کلیئر کیجیے گا کہ جو لیک آف ٹرسٹ ہے
अपोजिशन के दरमियान इमरान के जाने पर लैक ऑफ ट्रस्ट है कि अपोजिशन की पार्टियां, जिस तरह आप एक मरतबा लॉन्ग मार्च के लिए निकल चुके हैं, लेकिन वो ट्रस्ट का इजहार नहीं हुआ, या तरीकाकार के ऊपर इख्तलाफ पाया जाता है कि बड़े मियाँ साहब का ये कहना है कि इलेक्शन होना चाहिए लंदन में बैठ के, जो उनकी बातें आ रही हैं इन हाउस, असल में लैक ऑफ ट्रस्ट किस पॉइंट के ऊपर है जिस वजह से पूरी अपोजिशन मुत्तहिद नहीं हो पा रही? अब मुत्तहिद हो जा रही है। जब एक इत्तेहाद की तरफ हमारा अमल बढ़ने लग जाता है तो फिर मेरे ख्याल में इस किस्म के सवालात नुकसान करते हैं, फ़ायदा नहीं किया करते। शुक्रिया। क्या नहीं, मैं बता रहा सुतून के काम कर रहा हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त ईरान में इज़हार ख्याल कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत अपोजिशन रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद के बाद अच्छे नताइज मिलेंगे। इसके अलावा उनका कहना था कि मुश्तरका अपोजिशन का मिड टर्म इलेक्शन समेत जो भी फैसला होगा उस पर अमल करेंगे। हुकूमत के खिलाफ अवाम एक पेज पर है, ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि एक महकमे के 2 वजीर होने के बावजूद कराची का ये हाल है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 1.25 अरब रुपए की ग्रांट कहां गई? सिंध में 17 साल से इक़्तिदार के बावजूद पीपल्स पार्टी कुछ न कर सकी। कराची तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कराची शहर डूब रहा था और पीपल्स पार्टी सालगिरह मना रही थी। कराची में 2 घंटे की बारिश के बाद सूरत हाल सबके सामने है। उन्होंने कहा कि एक महकमे के 2 वजीर होने के बावजूद कराची का ये हाल है। कराची में बारिश ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी अयां कर दी। उन्होंने सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नालों की सफाई का फंड बेजाब्तगी की नजर हो चुका। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 1.25 अरब रुपए की ग्रांट कहां गई? खुर्रम शेर जमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी की वजह से दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। हर साल 40 से 50 करोड़ रुपए 6 नालों के लिए जारी होते हैं। कराची में बारिश बल्दियाती हुकूमत के लिए कमाने का सीजन बन गया है। पीपल्स पार्टी ने लाड़काना, सेवन, नवाबशाह के साथ भी कराची जैसा हाल किया है। सिंध में 17 साल इक़्तिदार के बावजूद पीपल्स पार्टी कुछ न कर सकी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में मानसून की सूरत हाल के हवाले से इजलास हुआ। सिर्फ नालों की सफाई मसले का हल नहीं, लोकल बॉडीज के पास एक बाकायदा मैकेनिज्म होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मानसून की सूरत हाल से मुतालिक इजलास हुआ, जिस दौरान उनका कहना था कि कुदरती आबी गुजरगाहों पर इमारतें बन गई हैं, नालों के साथ तजावुज़ात हैं, जिसके बाइस बारिश का पानी नहीं निकलता। मुराद अली शाह ने कहा कि सिर्फ नालों की सफाई मसले का हल नहीं, लोकल बॉडीज के पास एक बाकायदा मैकेनिज्म होना चाहिए। मुराद अली शाह ने कहा कि इन इलाकों का तफसीली प्लान दें जहाँ घरों में पानी गया। शहर की तमाम 28 सब डिवीजन का प्लान दें। मैं तमाम सब डिवीजन पर वजीर या मुशीर की ड्यूटी लगाऊंगा। इजलास में सूबाई वज़रा सैयद गनी, नासिर शाह, वकार मेहदी और दीगर शरीक हुए। शहर कायद में मूसलाधार बारिश के बाद अहम शाहराहों पर पानी ताहाल मौजूद है। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे धरे के धरे रह गए। रेन इमरजेंसी के बावजूद आम शाहराहों से अमला गायब है, जबकि जिला वस्ती की शाहराहों पर पानी की निकासी ना हो सकी। 5 स्टार चुरंगी, लंडी कोतल और हैदरी दीगर इलाकों में भी पानी अब भी सड़कों पर जमा है। पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। दूसरी जानिब बारिश के बाद शहर में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने की वजह से बिजली बहाल नहीं हो सकी कि इलेक्ट्रिक ने सार्फिन को इतला दिए बगैर बिजली बंद करना शुरू कर दी। कराची के इलाके औरंगी, मंगोपी, नॉर्थ कराची, गुलबर्ग, ख्वाजा अजमेर नगरी, मूसा कॉलोनी, गरीबाबाद, बनारस, सरजानी, तैसर टाउन, काठोर, गुलशन मेमार, एसनाबाद, सोराबगोड, अजीजाबाद, FB एरिया और कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों को भी बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। कश्मीर की आज़ादी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीमों की मसला कश्मीर पर खामोशी समझ से बालातर है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी का नौजवानों से खिताब, कहा कि नौजवान ही कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं।
اسلام آباد میں ملک بھر کی جامعات سے منتخب کشمیر ایمبیسڈر سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی کا کہنا تھا کہ کشمیریوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ کھڑے کر دیے جاتے ہیں مگر امت مسلمہ کو احساس تک نہیں ہوتا. آئے روز ایک گھر سے 10 جنازے نکلتے ہیں مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا. دنیا بھر میں جتنے بھی انقلاب آئے ان میں نوجوانوں نے کلیدی کردار ادا کیا مگر آج پاکستان کے نوجوان بے روی کا شکار ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی حقوق کے لیے پلیٹ فارم پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم بھی اس دھرتی پر گزر بسر کر رہے ہیں. شہریار آفریدی نے کہا کہ ہندوستان اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائے. وہ ملک جہاں انسان سے زیادہ جانور کی عزت ہو وہ کشمیریوں کو حقوق کیسے دیں گے؟ اگر ظلم یوں برقرار رہا تو کشمیر کا بچہ آسیہ اندرابی اور برہان وانی ہوگا. تقریر میں ڈاکٹر مجاہد گیلانی، اسامہ احمد سمیت ڈریم پاکستان کے ممبرات نے شرکت کی. جوڑاوالا پولیس اور ڈاکوؤں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں ایک ڈاکو ہلاک جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا. مفرور ڈاکو کی تلاش جاری ہے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ عاطف چودھری سے. جی عاطف، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، فیصلہ آباد کے تھانہ صدر میں چک نمبر 112 گاہ میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر ڈاکو ناکہ لگا کر لوگوں کو لوٹ رہے تھے. پولیس کو اطلاع ملتے ہی فوری پولیس نے کارروائی کی جس پر پولیس اور ڈاکوؤں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا جبکہ پولیس کی جانب سے فائرنگ میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا اور اس کا ایک ساتھی تھا جو وہ فرار ہو گیا ہے. مرنے والے ڈاکو کی ابھی تک کوئی شناخت نہیں ہو سکی. فرار ہونے والے ڈاکو کی تلاش کے لیے پولیس کی بھاری نفری کو علاقے کو گھیر لیا ہے. جی بہت شکریہ عاطف اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت ایوان میں اظہار خیال کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. حذف کرنے کا ایک عندیہ دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیب کی لسٹ آف افینسز ہے اس سے اس کو ہٹانے کا ارادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کو انٹرنیشنلی اور فیٹف کے اس جو بحث ہے اس میں پاکستان کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. ایک نمبر 2 جناب، ان کے بقول دوستوں کے انہوں نے ایک بینچ مارک تعین کیا ہے کہ وہ کیسز جو 1 ارب سے اوپر ہوں، مطلب جہاں کرپشن کی جو رقم ہے یا حجم ہے وہ اگر 1 ارب سے زیادہ ہو تو وہ نیب کے زمرے میں آنا چاہیے. ان ادر ورڈز اگر 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 روپے کی کرپشن ہو تو وہ کم از کم نیب کے زمرے میں نہیں آتی. یہ ہمارے لیے یہ اچنبھا تھا اور ہمارے لیے یہ حیران کن چیز تھی اور ہمارے لیے اس کو ہضم کرنا، کم از کم تحریک انصاف کے لیے اس کو ہضم کرنا دقت دکھائی اس میں دے رہی ہے. جناب والا، پھر آپ دوستوں کی خواہش تھی کہ جو ہمیں منی لانڈرنگ کے لیے، انٹرنیشنل کوآپریشن کے لیے جو ہمیں لیگل اسسٹنس ہم لیتے ہیں، ان کے بقول وہ اس کو نیب سے الگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جوڑنا چاہتے ہیں پاکستان کے قانون شہادت سے. ہم سمجھتے ہیں اگر اس کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کوسٹ گارڈز نے کارروائی کر کے 5 مسافر خواتین سے کروڑ روپے مالیت کی منشیات برآمد کروا لی.
पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने बलूचिस्तान के इलाके वंदर के करीब वाक़ नागाखारी चेक पोस्ट पर कोयटा से कराची आने वाली मुसाफिर कोच में सवार 4 खवातीन से 25 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद करके 4 खवातीन को हिरासत में ले लिया, जबकि एक और कोच में सवार मुसाफिर खातून से 12 किलोग्राम हशीश बरामद करके मुसाफिर खातून स्मगलर को हिरासत में ले लिया। पकड़े जाने वाली मनशियात की आलमी मार्केट में मालियत तकरीबन 6 करोड़ 18 लाख रुपए के लगभग है। बरामद शुदा मनशियात 5 खवातीन स्मगलर्स को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश जारी है। इस्लामाबाद पुलिस का दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर जिला भर में गैर कानूनी मवेशी मंडियों पर क्रैकडाउन जारी है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गैर कानूनी बकरा मंडी लगाने वाले दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना गोलरा सेक्रेटरिएट सब्जी पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गैर कानूनी बकरा मंडी लगाने वाले दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिला इंतजामिया की तरफ से कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए जिला भर में दफा 144 का नफाज कर रखा है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात के मुताबिक दफा 144 के नफाज का मकसद शहरियों को कोरोना वायरस जैसी वबा के फैलाव से महफूज रखना है। दफा 144 पर अमल दरामद के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम उठाए जाएंगे। ईद के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मंडियों मुख्तस कर रखी हैं। ओकारा जिला इंतजामिया और ताजर बरादरी में ठन गए। डिप्टी कमिश्नर उस्मान अली का कहना है कि हुकूमती अहकामात पर हर सूरत में अमल दरामद करवाया जाएगा, जबकि ताजर बरादरी का मुतालबा है कि ओकारा इंतजामिया लॉकडाउन खत्म करे। सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा राना मोहम्मद सलीम। जी सलीम, बताइएगा कि इस मसले का क्या हल निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, ओकारा इंतजामिया और ताजर बरादरी में ठन गई। डिप्टी कमिश्नर उस्मान अली का कहना है हुकूमती अहकामात पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। इंतजामिया ताजर बरादरी का कहना है कि इंतजामिया लॉकडाउन खत्म कराए। हालिया लॉकडाउन से हमारा कारोबार तबाह हो जाएगा। ताजर बरादरी का मजीद कहना है कि इंतजामिया लॉकडाउन को ईद उल ज़ुहा तक खत्म करे। जिले इंतजामिया और ताजर बरादरी के दरमियान दूसरा मरहला डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जारी है, जिसमें तमाम सियासी जमातें और जुम्मेदारान मौजूद हैं। अभी उनका कोई अभी तक हल नहीं निकला। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत के खिलाफ नाअहली की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त के मुताबिक आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे। अदालत ने केस की मजीद कार्रवाई के लिए 9 सितंबर मुकर्रर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की नाअहली से मुतालिक मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मौसर अख्तर कयानी ने समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि राजा बशारत ने कागजात नामजदगी में झूठ बोला, असासे छुपाए और झूठा हलफनामा जमा करवाया। राजा बशारत आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे। राजा बशारत की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त 2 साल से ज़ेरे इल्तवा है। अदालत से इस्तदा है कि दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद राजा बशारत के खिलाफ रिट पिटीशन सितंबर के पहले हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुख्तसर हुक्म सुना दिया। मसनूई ज़हानत की पहली कॉस्मेटिक नुमाइश 4 अगस्त से इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। इस कौमी नुमाइश के इनेकाद का मकसद पाकिस्तान में लोगों की तवज्जो मसनूई ज़हानत की जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ मबज़ूल करवाना है। कॉस्मेटिक के कोऑर्डिनेटर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी ने बताया कि कॉस्मेटिक मसनूई ज़हानत की मसनूआत और खिदमात की पहली 2 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद कर रहा है, जो 4 अगस्त से 5 अगस्त तक जारी रहेगी। उन्होंने मजीद बताया कि इस कौमी नुमाइश के इनेकाद का मकसद पाकिस्तान में लोगों की तवज्जो मसनूई ज़हानत की जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ मबज़ूल करवाना है। बिलखुसूस तलबा और तालिबात को इस टेक्नोलॉजी की जदीद रुझानात से मुतारिफ करवाना और पाकिस्तान में बनने वाली इस टेक्नोलॉजी की मसनूआत और खिदमात से आवाम को मुतारिफ करवाना है, ताकि लोग इस टेक्नोलॉजी से ज्यादा मुस्तफीद हों और चौथी सनती इनकलाब के फवाइद को बाखूबी और बरवक्त हासिल कर सकें। उन्होंने बताया कि मसनूई ज़हानत दुनिया की दूसरी बड़ी टेक्नोलॉजी है और ममालिक के बरामदात में कई गुना इजाफे का बाइस बन रही है। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मशीर जनाब डॉक्टर तारिक मसूद ने कहा कि हमारे पास सलाहियत है, इंसानी वसाइल है, महारत है, बस इस अमर की ज़रूरत है कि हम अपनी कोशिशों से हम आहंगी पैदा करके मुश्तरका मंसूबे शुरू करें और इनसे हासिल होने वाले नताइज और कामयाबियों को अवाम तक पहुँचाएँ। मुल्क भर में यकसा तालीमी निज़ाम नाफिज करने का मामला वफाकी हुकूमत की जानिब से यकसा निसाब से मुतालिक तैयार करदा मुसवदा सामने आ गया। मुसवदे में क्या क्या शामिल है, जानते हैं अपने नुमाइंदा शहराज अहमद शराजी से। जी शहराज।
आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि मुल्क भर में यकसा तालीमी निज़ाम नाफिज करने का मामला वफाकी हुकूमत की जानिब से यकसा निसाब से मुतालिक तैयार करदा मुसव्वदा सामने आ गया। मुसव्वदे में क्या क्या शामिल है, जानते हैं अपने नुमाइंदा शराज से। जी शराज। जोड़ा शहरों में ईद कुर्बान करीब आते ही चारे की कीमतों में होशरुबा इजाफा, शहरी परेशान, कुर्बानी के जानवर पालना हर किसी के बस की बात नहीं। शहर के लोग कैसे इस सूरत हाल से निपट रहे हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, यहाँ पर जो मवेशियों के खाने पीने का सामान है उसकी भी कीमतों में एक वाज़ेह फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा है। जैसे कि यहाँ पट्ठे, चोकर और जो तूड़ी, भूसा वगैरह, इन सब की कीमतों में 5 से 10 रुपए जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, जिस पर शहरी भी काफ़ी परेशान है और दुकानदारों का भी ये कहना है कि इससे जो है हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है उसमें ख़ासी कमी वाक़या हुई है। और इसके अलावा जो यहाँ पर दीगर सामान है, इनकी सजावट और सजाने के हवाले से जो सामान है उसकी भी कीमतें जो हैं पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही हैं। जी। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मवेशी मंडी दौड़ के इलाके में सज गई, जहाँ पर पाकिस्तान के चारों सूबों से लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की खरीदारी के लिए पहुंच चुके हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद सलीम अराई से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी सलीम। जी बिल्कुल, इस वक्त हम दौड़ मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं। ईद उल अज़हा के करीब आते ही सुन्नत इब्राहिमी के लिए लोग यहाँ पर बड़ी कसीर तादाद में मौजूद होते हैं। हम लोगों से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर मंडी के ठेकेदार की तरफ से क्या सहूलियात दी गई हैं और निर्खों के हवाले से इनका क्या। मैं हैदराबाद शहर से आया हूँ, लेकिन यहाँ पर रेट तो बहुत मुनासिब है, लेकिन सफाई के लिहाज से ना कोई इंतजाम नहीं है, ना पानी का इंतज़ाम है, ठंडे पानी का, और कीचड़ वीचड़ भी बहुत है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, बड़ी मुश्किलात हैं। इसलिए चाहिए इंतज़ामिया को कि इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए। मैं नवाबशा शहर से हूँ, यहाँ पर जो वो लेने के लिए अपने जानवर वगैरह, और यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। आप देखें पर्ची कितनी महंगी है, पर्ची इतनी महंगी है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है। वो तो कहते हैं SOP कहते हैं, चले आप वही देखें गिलास पानी का पी के उसी के अंदर वो बाल्टी पड़ी के उसी के अंदर धो के वापस दोबारा उनको पिला रहे हैं। किसी चीज़ का वो DCO साहब को चाहिए कि यहाँ आके बैठे एक इंतजामिया का बंदा खड़ा करें, उनको पता चले क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मौजूद लोगों की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि जो निर्ख हैं वो तो मुनासिब हैं, लेकिन मवेशी मंडी के ठेकेदार की तरफ से यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं दी गई। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ मोहम्मद सलीम अराई, JNN न्यूज़। और यहाँ खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताएंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। इंग्लैंड में मौजूद दीगर 9 खिलाड़ी T20 सीरीज के लिए अपनी तैयारियों का सिलसिला जारी रखेंगे। टेस्ट स्क्वाड में कप्तान अजहर अली, बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इमाम उल हक, इमरान खान सीनियर, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, नसीम शाह, शदाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, शान मसूद, सुहेल खान, उस्मान शनवारी, वहाब रियाज और यासिर शाह शामिल हैं। जबकि फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, हैदर अली, इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, खुशदिल शाह, मोहम्मद हुसनैन और मूसा खान T20 सीरीज के लिए अपनी तैयारियों का सिलसिला जारी रखेंगे। और यहाँ आपको बताएंगे मुजफ्फरगढ़ में एक शख्स ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर अपनी बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके मौजा नूरन अब्रैंड में ताहिर नामी शख्स ने फायरिंग करके अपनी बीवी जाहिदा, माई और बेटी मुनज़्ज़ा बीबी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ताहिर को मुबैना तौर पर अपनी बीवी के किरदार पर शक था। वाक़े के बाद मुलजिम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाक़े के बाद कत्ल होने वाली मां और बेटी की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।